Sometimes all you need is a road that doesn't end and a destination that speaks to your soul. This weekend I'm chasing one such place called Malapakonda. What's up everybody, welcome back to the channel, welcome back to the new video. So in today's video we are going to a place called Malapakonda. It's only one place from where you can see all three state borders in one go: Tamil Nadu, Andhra and Karnataka. These three borders you can see in one go from one place, that is called Malapakonda. It got famous around 2-3 years back, but I didn't got the time to visit. Finally I got the time to visit. Yesterday night only I decided on spot, let's go somewhere on this weekend. So this is a quick plan. Now the time is 5:23. I thought of leaving around 5 o'clock, but taking few cinematic shots got me late. Alright, we are back on the Hosur road. Let's talk about the route details. So today's route we are taking from our home to Hosur road to Bamsandra to Attibele to Hosur, and we are taking from there, I guess, one left, and we will be reaching to Malapakonda. It's around 110 kilometer. Let's go. I think I forgot something in the home, because we got too many accessories. Like camera, two cameras, one DJI and one Legend 6000 camera, which is my old camera, and I got drone, tripod, 2 phones, lot of accessories I got. I feel something I forgot in home, but no problem. If I forgot in home, it will be in home. What happens usually is, whenever I go on a ride, something, especially the mini tripods, I have lost too many tripods on my rides. Probably around 8-10 tripods I lost, so that's why I'll be very careful with my accessories. Yeah, feels so enjoy now. It's been a long time I haven't been on this road, Bangalore Kanyakumari highway road. I took this road, I guess, last time when we have gone to Kodaikanal. Yeah, that was the last time I was on this road, and almost, you can say, 7 months. We have been in December to Kodaikanal, December to July. This is July. Today is, I guess, 19th, and almost 6th month. After 6 months 20 days I am on the same road. There is a magic to early morning rides when the world is asleep. The road feels like it only belongs to you. No traffic, no noise, just you and your thoughts. Each kilometer sheds a layer of stress. With every rave I feel lighter. And this is a meeting point for lot of bikers, you know. जब हम भी कभी किसी ज़माने में ग्रुप राइड्स किया करते थे, तो मीटिंग पॉइंट अपना यही होता था. हम यहीं पे मीट हुआ करते थे हम भी. लेट्स गो. ये टोल के पास ना, कौन बंदा कब कहाँ से आ जाए वो पता ही नहीं लगता, क्योंकि एक तरफ तो सारे बड़े बड़े ट्रक और 10 व्हीलर 12 व्हीलर ठहरे रहते, तो वहाँ से कौन घुस जाए पता नहीं. कंसिस्टेंटली दिस वाज माय सेकेंड वीकेंड राइड. आई होप. क्या हो गया ब्रो? चेक पोस्ट. बिकॉज ऑफ चेक पोस्ट ओनली वी आर गेटिंग लॉट ऑफ ट्रैफिक over on the highways. I thought like he was stopping for me, but why would he stop for me? All right, तो अभी हमें लेना है एक लेफ्ट डाइवर्जन. आई गेस दिस इज़ द वन. यहाँ तक था अपना हाईवे पे सफ़र, और यहाँ से ख़त्म हो गया अपना हाईवे वाला सफ़र. यहाँ से अपने को और कुछ ये देखो भाई साहब,
यहाँ से अपने को और कुछ 35 किलोमीटर कवर करना है। हाईवे पे ऑलमोस्ट 75 to 76 किलोमीटर चलाने के बाद थोड़ा बोर हो गया था मैं भी सोच रहा था कब ख़त्म हो गया हाईवे। तो फाइनली वी आर बैक ऑन द नैरो एंड ए लिटिल ब्यूटीफुल रूट। लेट्स गो। अभी यहाँ पे कहीं पे देखते हैं, एक चाय स्टॉप कहीं पे मिलेगा तो वहाँ पे हम एक छोटा सा चाय स्टॉप लेंगे। यहाँ से शायद थोड़ा सा फॉरेस्ट एरिया जैसे लग रहा है मुझे। ओह ब्यूटीफुल। सॉलिड है रोड यहाँ का, नाइस। Little boys are running. What's up? Come on, boys. Beautiful route. भाई साहब, जहाँ पे हमने एक लेफ्ट टर्न लिया हाईवे को छोड़ के, वहाँ से तो पूरा सीन ही बदल गया यार। ये जो छोटा नैरो वाला रूट है ना, वो काफ़ी खूबसूरत है। जितना बोरिंग वो जो 75 किलोमीटर में हमें चलाने के लिए फ़ील हुआ ना, बाकी के ये जो छोटे से रोड में चलाने के लिए उतना मज़ा आ रहा है। काफ़ी छोटे छोटे टर्न और काफ़ी ब्यूटीफुल टर्न है, छोटे से विलेज के साथ होते हुए। यहाँ से एक और लेफ़्ट लेना है अपने को। 2 रास्ते जाते हैं यहाँ पे, एक राइट और एक लेफ़्ट। हम लेंगे यहाँ से एक लेफ़्ट। अरे भाई साहब, फुल रॉकेट की तरह आ रहा है बंदा। इसको काफ़ी पीसफुल और काफ़ी स्लो लाइफ है यार यहाँ पे। मज़ा आ रहा है देखने में, वो वाइब होती है ना, वो वाइब फील हो रही है। एकदम मस्त रूट है ब्रो, मज़ा आ गया इस रूट पे। काफ़ी इंटरेस्टिंग रूट है ये, जहाँ से हमने हाईवे छोड़ के एक डाइवर्जन लिया था ना, वहाँ से। ब्यूटीफुल रूट, ब्यूटीफुल प्लेस। अभी तो ऐसा लग रहा है कि पूरा पहाड़ों में आ गए हम। ऑफ कोर्स पूरा पहाड़ों में ही है हम, लेकिन ऐसा फील हो रहा है जैसे कहीं ऊटी या कोडाईकनाल साइड जाने पे फील होता है ना, वैसा फील हो रहा है। पूरा का पूरा फॉरेस्ट एरिया में है हम, अपने दोनों तरफ पूरा पहाड़ है। देखो पूरा का पूरा फुल पहाड़ी इलाका है ये। अभी तो अपने को 5-6 किलोमीटर इसी रास्ते पर चलना है। लेट्स गो। ओहो, इतना सीनिक रूट होगा करके मैंने सोचा भी नहीं था मल्लप्पा कोंडा जाने का। बढ़िया रूट है ब्रो। यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा है इन्होंने, स्लो डाउन फॉर वाइल्ड लाइफ। ओके, मूवमेंट यहाँ पे काफ़ी कम है लोगों का, काफ़ी लोग कम दिखाई दे रहे हैं। अभी एक जो फैमिली वाला बंदा गया ना, उसी को मैंने देखा था यहाँ पे, उसके सिवा और किसी को नहीं देखा मैंने। शायद ये भी एक वजह हो सकती है, ज़्यादा अंदर का रूट होने की वजह से यहाँ पे मूवमेंट काफ़ी कम है लोगों का। आई कैन सी फ्रॉम हियर ऑलमोस्ट द लोकेशन, दैट इज़ मल्लप्पा कोंडा। Why? Because there is a small shivling over there on top of that, which you are going to see in drone shots. This is a pure forest area, and from the top of the view you can see all 3 states: Karnataka, Andhra and Tamil Nadu. Let's go. तो यहाँ से अपने को लेना एक लेफ्ट। ये रहा लेफ्ट। लेट्स गो। लास्ट के जो 5 से 6 किलोमीटर है ना, वो काफ़ी सॉलिड है भाई, काफ़ी सीनिक रूट है वो। लास्ट के जो 5 से 6 किलोमीटर, मान के चलो अब 10 किलोमीटर लास्ट के जो है वो काफ़ी सीनिक रूट है। अभी हम थोड़ा ऊपर चढ़ने के बाद
वहाँ से अपने को व्यू देखना स्टार्ट हो जाएगा। एक्चुअली ये पूरा पहाड़ मल्लप्पा कोंडा का ही है। क्लाइमेट काफ़ी अच्छा होने की वजह से काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है आज। घाट रोड स्टार्ट्स गो स्लो। ओके, तो यहाँ से घाट, जो मल्लप्पा कोंडा का घाट रोड होता है ना, वो स्टार्ट होता है। जिंदा है? कौन सा ब्रीड है वो क्या बोलते हैं उसको? पाइथन है, पाइथन। पाइथन, छोटा वाला पाइथन वो। क्रेजी है। सॉलिड है ना? किसने देखा है पहले? मूव नहीं हो रहा है वो? नहीं नहीं नहीं, वो मूव नहीं हो रहा है, आगे नहीं जा रहा है ना। रुको रुको, रहने दो। पाइथन है वो। हाँ, अभी कुछ खाया ऐसा नहीं लग रहा है वो। उसका मूवमेंट ही स्लो आता है। अभी ये बच्चा है ना, छोटा, तो इस वजह से। तो ये ऑलमोस्ट फॉरेस्ट एरिया होने की वजह से यहाँ पे ऐसे, हाँ, ऐसे काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं यहाँ पे। आपको शायद सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है पता नहीं। पिकॉक का साउंड काफ़ी ज़ोरों शोरों से हो रहा है यहाँ पे। काफ़ी पिकॉक्स है यहाँ पे। लेट्स गो। अभी तो हमने चढ़ना स्टार्ट किया है। बस भाई लोग मिले थे यहाँ से। अभी व्यू देखना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ से। यहाँ हम थोड़ा अर्ली मॉर्निंग में आते हैं ना, तो मज़ा आ जाता है। अभी तो क्लाइमेट काफ़ी खूबसूरत है, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेट्स गो। एकदम नेक्स्ट लेवल है ब्रो, रूट है। क्या ही बताऊँ मैं इस रूट की बात। ये जो छोटा सा घाट सेक्शन है ना, लास्ट का 4 से 5 किलोमीटर का, वो तो भाई साहब नेक्स्ट लेवल लगेगा आपको। यहाँ का व्यू देख रहे हो आप, क्या ही खूबसूरत लग रहा है। That's what I called a adventure ride. And there it was, Mallappa Kunda. Not just a meeting point of borders, but of cultures, of histories, of language. Andhra, Karnataka, and Tamil Nadu all in one frame. Standing here, I felt small, like a tiny dot in a vast canvas painted by the time and terrain. But I also felt something else complete. This place teaches you something without saying a word. That no matter how different we are, languages, food, faces, when we stand on the same land, breathe the same air, and respect the same sky, we are all one. I came here looking for a view, but what I found was perspective.
As the road pulled me back home, I carried more than memories. I carried peace, I carried clarity, and most of all, I carried gratitude. And that's why we ride for places like Malapakonda, for stories the road whispers, and for the parts of us we only discover when we are miles away from everything.